عارف الاستفهام مثل هل كيف أين متى ما من حتى ماذا. وأعرف التنوين مثل كتاب كتابا كتاب قلم قلما قلم مسطرة مسطرة مسطرة. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ممتاز ماشاء اللہ. الحمد للہ. عالیہ اللغة العربية سهلة أو صعب؟ يا سهلة سهلة مطلب ماشاء يا اللہ سهلة. ماشاء الحمد اللہ. للہ. تو ابھی آپ نے نا ایسے پریکٹس کرنی ہے جیسے یہ جتنے بھی حروف ہیں حروف جدی جن کو کہتے ہیں ان کی لسٹ الا یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ان فی جی اولا وراء خلفا بی جی بینا تحت فوقا من اماما. یہ ایسے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں, یہ کوئی نئے نہیں ہے آپ کے لیے. جی جی ہاں یہ بھی ہے جی. انشاءاللہ تو ظرف اس کی پوری ضمانت لسٹ ظرف بنائیں, مکان. ان کو یاد کریں, پھر ان کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ جی ٹھیک ہے. فہمتی کلامی؟ Did you understand my نعم نعم. نعم No. نعم. MashaAllah. All right. Anybody else? Any volunteer? جی کوئی ہے میرے ساتھ؟ جی جی سر. شاہین شاہین. ہے. شاہین ہے. میں کروں شاہین بہن کے ساتھ؟ جی سر. یا اختی شاہین کیف حالک؟ الحمد للہ. ماذا تعرفین فی العربیہ؟ عارف الاسم ماذا ہے؟ مثل فاطمۃ مہندس مدرس نافذۃ بیت مسجد. ماذا تعرف ایضا؟ عارف الصفة طویل قصیر جدید قدیم جمیل قبیح قریب بعید. عارف الحروف عارف الحروف الى من فی ان. عارف الاستفهام کیف هل ما الخ. اور عارف التنوین کتاب کتابا کتاب قلم قلما قلم الخ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. You want to change? جید. جزاک اللہ. You want to ask Dr. Abid Saab now, Shaheen? اوکے. ماذا تعرف فی العربیہ؟ عارف الاسم مثل ماذا؟ مثل خالد طالب طبیب. Next question. الخ. ماذا تعرف أيضا؟ عارف الصفة مثل طويل قصير طويل جميل كثير. الخ 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 سوري. مثل طويل. عارف الحروف مثل على من إلى عن. Inda is correct, Ashfaq sir? Inda is something else. Acha. Inda
وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں اسم حرف وہ چیز ہوتی ہے جو اس کے بعد اسم آئے گا نا اس کے اوپر افیکٹ کرے. تو اگر ہم یہ کہیں ہندی کتاب اور ہندی اولاد تو وہ اس کے لیے کچھ اس کے اوپر اثر نہیں کرتا. اس کو اسی طرح ابھی پھر رکھیں، مگر ہندی کے اور استعمال بھی ہیں تو اس موقع پر ہم اسی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ کہ وہ نہیں ہے. عارف الاستفهام مثل هل، كيف، من، والخ. عارف التنوين مثل كتاب، كتابا، كتاب، مكتب، مكتبا، مكتب، یہی قلم، ماشاءاللہ قلم، ممتاز. ماشاءاللہ. قلما. انشاءاللہ. تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا آپس میں کافی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس طریقے سے. جو رہ گئے ہیں نا وہ پھر کیونکہ آج تھوڑی بات پہلے بھی ہو گئی تو ابھی میرے خیال میں ہم لیسن کی طرف ہی چلتے ہیں. پھر لیسن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اگر وقت ملا تو پھر اس کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال؟ please. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم چلتے ہیں اس کلاس لیسن کی طرف. تو میں نا شیئر کرتا ہوں اسکرین انشاءاللہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہلا وسہلا ومرحبا بکم جمیعا فی صف اللغۃ العربیہ. تو آج جو ہے نا مجھے یہ بتائیں کہ جو حروف القمریہ اور حروف شمسیہ ہیں اس میں کسی کو کوئی دقت نہیں کیا ہے؟ میں اصل بھول گیا ہوں لیکن میں دیکھ لوں گا، آپ لوگ یہ کریں. بہت آسان ہے. اس میں جو لسٹ دی ہوئی ہے انہوں نے یہ یہ دیکھیں الف با، اس کے بعد تا ہوتی ہے. یہ دیکھیں تا ادھر چلے گیا. التاجرو، الصوبو. جس کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے اس کو کوئی بھی مشکل اس میں نہیں آنی چاہیے. اس میں مذکر اور مونس کی بھی کوئی قائد نہیں. الجنتو اور الجمالو سیم اس پہ جو جیم ہے نا یہ ہے حرف قمریہ. اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. القمریہ الشمسیہ بہت آسان ہے. یہ دیکھیں جی جی نہیں، قمر کیوں بولے گئے ہیں یہ حروف؟ یہ اس لیے قمریہ بولے گئے ہیں کہ کمر کے وزن پر ہیں، ایزی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کمر سے آ رہے ہیں، چاند سے نہیں آ رہے. یہ ان کو الحروف القمریہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اس وزن پر ہیں. جب لفظ ہوگا کمرن، اس کو قمریہ اس لیے کہا گیا ہے کہ حروف مونس ہے تو اس کو بھی اسی لیے مونس کہا گیا ہے. اسی لیے یہاں بھی شمس بھی مونس ہی ہوتی ہے تو اس کو مونس کہا گیا. قمر کو بھی اسی لیے مونس کہا گیا ہے. جتنے بھی اچھا، یہ حروف ہیں نا یہ سب مونس ہوتے ہیں. جتنے بھی با کو حروف ہیں. شمسیہ کیوں بولا گیا؟ با تا جی تا کو اس لیے شمسیہ. شمسیہ بولا ہے کہ دیکھیں آپ مجھے صرف یہ بتائیں گے، آپ میرے ساتھ انٹریکٹیو کریں گے ابھی. جی، بغیر ال کے آپ اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ تاجر. تاجرن. تاجرن کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تاجر از تاجر. ایک تاجر ہوگا نا جی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈیفینٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تاجر کو ہم نے ڈیفینٹ بنانا ہے. اور آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ عربی میں ڈیفینٹ بنانے کے لیے ہم لام اور تعریف جو ہوتی ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم ال لگا تاجر. دیتے. تو جب ہم ال لگاتے ہیں تو اس کی جو آواز ہے یا اس کی پروننسیشن جو ہے وہ دو طریقوں سے ہے. یہاں پر لفظ ہے ابن، اس کے ساتھ ہم نے جب ال لگایا تو ابو آ گیا اور لام کی آواز بھی آئے گی. اس کو ہم پڑھیں گے الابو. اور تاجر کو التاجرو پڑھیں گے. اوکے ٹھیک ہے، یہ میں نے وہ قاعدہ وہاں ہے. سے ہوا.
یہ قاعدے کی بات، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے آپ کی آسانی کے لیے شمس کا استعمال کیا ہے کہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ شمس جو ہے وہ کیا، سورج کو بھی سمجھتے ہیں سب اور چاند کو بھی سب لوگ سمجھتے ہیں. اور اس میں کوئی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت آسان ہے. ان حروف کو آپ یاد کر لیں، مطلب یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں. میرے استاد نے تو نہیں مجھے یاد کروائے تھے، انہوں نے تو کہا کہ یہ تو خود بخود جب آپ بولیں گے نا کسی بھی بالکل لفظ کے ساتھ تو ال یعنی لگائیں گے اس میں تو وہ خود بخود آ ال جائے گا. جب پروناؤنس کریں گے وہ قمریہ ہوں گے، اور جو تیسرے الفابیٹ کے ساتھ جوڑیں گے جیسے التاجر، جی الثوب، الدیک، الصوب، جی تو وہ الدیک. شمسیہ ہو جائیں گے. جی شمسیہ، یہ جو حرف ہے نا یہ تا جس سے لفظ شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ شمسیہ ہے. صحیح تاجر شمسیہ نہیں ہے، بالکل صحیح. تاج شمسیہ ہے. آج جو ہے شمسیہ ہو. جو حرف ہے اس لیے اس کو حروف کہتے ہیں نا. یہ سارے حروف ہے نا اس دونوں کالم میں، تو یہ جتنے بھی ہیں. اب اگر میں کہوں آپ ہی میرے ساتھ ہیں، آپ سے سب سمجھ جائیں گے. تو لفظ ہوتا ہے امن مدر، ابن فادر ہوتا ہے، امن مدر کو کہتے ہیں. اس کے ساتھ ال لگائیے اب. الامن، نہیں الامو، الامو، جی کیونکہ یہ دوسرا قاعدہ اب اس کا آ گیا ہمارے ساتھ. دوسرا قاعدہ جو اس پہ لاگو ہوگا جب ال لگ جائے گا تو تنوین ڈس اپیئر ہو جائے گی. صحیح. تو جو دمتائن تھے ان میں سے صرف فقط دمہ رہ جائے گا. الباب. ٹھیک ہے جی، صحیح. یہ بات واضح ہو گئی. جی صحیح. ابھی انشاءاللہ اس کو جب بھی آپ پروناؤنس کریں گے نا، جس کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے نا، ناظرہ بھی اگر آتا ہے تو اس کو پتا ہے. جس نے قاعدہ جسر القرآن پڑھا ہے یا قاعدہ بغدادی پڑھا ہے اس کو یہ قانون تو آتے ہیں ہم سب کو مسلمانوں کو، ٹھیک ہے نا، جن کو قرآن مجید آتا ہے پڑھنا. نہیں، تو آپ کو شاید حیرانی ہو، میں قاعدہ نہیں پڑھا ہوا میں نے. اچھا نقل شریف پڑھی. اچھا نہیں اس بھی کوئی نہیں. اب ایسی مشکل نہیں. قرآن جی تو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں ایسے ہی پڑھتے ہیں نا آپ. قرآن تو میں نے جی ہاں پڑھ کے سن کے جی اپنا کرا ہے. ماشاءاللہ. تو جید جداً اس میں نا آپ یہ معنوں میں یہی فرق آتا ہے کہ تاجرون کہیں گے تو ایک تاجر بنے گا، ایک ٹریڈر بنے گا. اور تاجرون کوئی خاص تاجر بنانا ہے. یہ اس لیے آپ کو اس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ بابن ایک دروازہ ہوتا ہے، البابو دا ڈور. ٹھیک ہے جی. جی ڈاکٹر عابد صاحب آپ ٹھیک ہیں ابھی یا؟ جی یعنی وہ آپ تنوین آگے سے ہٹا دیں گے جی اور ایک جب ان چیز لگ پہ جائے وہ گا. رہ جائے گا، وہ جی دونوں میں، شمس میں بھی، جی شمسیہ جی میں بھی اور قمریہ میں. جی اور قمریہ اور القمریہ. اور اس لیے یہ دیکھیں جب بھی آپ کبھی کنفیوز ہو جائیں تو اس کی طرف دیکھ لیں کہ یہ ہاں جیسے القمر. قمرن سے القمرو بن گیا، شمسن سے اشمسو بن گیا. صحیح. یہ آپ کے لیے ایک قسم کا ایک پیٹرن آ گیا. اور ماشاءاللہ باقی انشاءاللہ بہت آسان ہے اللہ کے فضل سے. جی عائشہ عالم سے پھر لے لیں سوال. جی سر عائشہ. جی سر، میں نے صرف تھوڑا سا کہ آپ جو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں سر، وہ بڑا اچھا نیچے جو بک میں ہی ایک ایکسپلینیشن جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ جو ورڈز ٹپ آف دا بلیڈ آف دا ٹنگ جس میں یوز ہوتی ہے ان کو وہ سولر لیٹر، اور جن میں ٹپ نہیں یوز ہوتی جیسے یعنی کہ جہاں پر ہماری ٹنگ، وہ بھی ایک یاد کرنے کے لیے کافی ہیلپ فل ہے. نیچے ہی بالکل جب آپ اس کے ال لگائیں گے، میرے explanation استاد نے یہی بتایا تھا کہ جیسے ہی آپ جی اس کے مخرج سے تاجر کو ال کے ساتھ ادا کریں گے تو خود بخود آپ کو پتا چل جائے گا یہ کہ شمسیہ ہے یا قمریہ ہے. تو اگر میں جی تاجر کے ساتھ یا شمس کے ساتھ ال لگاؤں گا تو میں اس کو الشمسو پڑھنے میں مجھے دقت آئے گی. الشمسو ٹھیک ہے نا، دقت آ رہی ہے نا. جی السمکو اس میں مجھے دقت آ رہی ہے. تو وہ بول رہے ہیں خود بخود آپ کی زبان جو ہے نا وہ سین پہ چلے جائے گی، شین پہ چلے جائے گی. یہ بھی قاعدہ اچھا ہے مگر اتنا مشکل بھی نہیں ہے. یہ عین ہے، غین ہے، فا. ایک اس کا ایک اور طریقہ بھی سکھاتے ہیں استاد. آپ ایک لسٹ بنا لیجئے، الف
यानी हमजा वाला, ये वाला अलिफ, बा, इससे जो ता उसके बनाते जाएं, फिर उनके ऊपर सर्कल लगा लें कि जो जो हरूफ शमसिया हैं और हरूफ कमरिया हैं। तो इट्स क्वाइट इजी, इट्स नॉट वेरी बिग इशू, इसको इशू बनाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें इससे कोई, सिर्फ मकसद इतना है कि आपने इनडेफिनेट से डेफिनेट बनाना है। तो चलें फिर आगे। यस। अच्छा, इसमें कुछ अल्फाज हैं, इनके कोई भी माना मुझे बता दीजिएगा। आपको स्क्रीन अच्छी तरह नजर आ रही है ना सबको? जी इशफाक साहब जी। ठीक है जी। तो मैं इसमें जितने भी ये अल्फाज लिखे हुए हैं मैं बोलता जाता हूँ, आप जल्दी जल्दी ना, जावेद साहब आप, आपसे शुरू कर लेते हैं। आप 3 अल्फाज जो है ना उनका मुझे बताएंगे। अल बैतु जो है, इसमें बा जो है ये शमसिया है या कमरिया? इसमें कमरिया है। ठीक। अदीकु, शमसिया। मुदर्रिसु, अमरिया। अलबाबु, अमरिया। ठीक। शैला, अतालिबु शमसिया है या कमरिया? शमसिया। क्यों? शमसिया। क्यों है? अत्तालिब। अत्तालिब। ता जो है वो हरफ शमसिया है इसलिए। जी, असुक्करु, ये भी हरफ शमसिया है इसलिए कि असुक्कर मतलब उससे मिल रहा है। जी, अल की आवाज नहीं आ रही, अल की आवाज नहीं आ रही इसमें। ठीक है ना? और ये असुक्कर देखें अल के ऊपर सुकून लगा हुआ है, जहाँ जी, आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना? जी। ठीक। अलिफ लाम जो चलो, है वो नुमाया हो रहे हैं और जहां पर अलिफ लाम नुमाया नहीं होते वो शमसिया होते हैं। सही। अच्छा सही जी, है? नेक्स्ट नेक्स्ट वन मेरी लिस्ट नहीं है मेरे पास, वो फिर स्क्रीन छोटी हो जाएगी। तो कोई भी बताए। अलाहू, कमरिया सर, मैं बताऊं? कमरिया। तो इसका असल लफ्ज क्या होता है? इंडेफिनेट, अखुन। अखून। तो जी। उससे नहीं, अलग से नहीं कंफ्यूज होना। नहीं, नहीं, अर वही है। रसूलु, ये क्या है? ये शमसिया है। शमसिया है, क्योंकि रा जो है ना वो हरफे ये शमसिया हर्फ है। शमसिया है, ठीक है ना? जी। इस पे असल जी। चीज यही देखने वाली है। साद जो है वो भी सौद भी शमसिया है। शमसिया। तो ये जी। अल वजहु तो भी मुझे शमसिया ही लगता है, आपको क्या लगता अलवजहु नहीं, वो कमरिया है। है? अच्छा, वजह? लाम की आवाज आ रही है उसमें, जैसे अलकमर में हाँ लाम की बिल्कुल आवाज आ रही है, इस बिल्कुल तरह से इसमें भी। बिल्कुल, ठीक है ना? चलिए, जी। इस तरीके से अल कुरानु। कमरिया। चलो कोई और आ जाए। अस्सलातु, शमसिया। सर मैं शमसिया है, आयशा आलम। ठीक। कोई भी बोलता जाए, आप माइक खोल। अलकाबा तो जिनको नहीं पता वो पूछ लें। अच्छा, ठीक है। रासो, ये कमरिया है या शमसी? शमसिया। है, शमसिया। 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 ठीक है। अल इस्बा, कमरिया। 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 कमरिया, ठीक है ना? लेकिन इसमें ना थोड़ा सा ये इसको समझने के लिए थोड़ा जरूरत है, मैं बताता हूँ इसको। साबुन, शमसिया। शमसिया। हाँ, ये ठीक। क्यों हुआ? अच्छा, इसकी तरफ आते हैं वापस, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अजुफ्र, ये इसकी वजह से है। हाँ? शमसिया। शमसिया। अल फज्र, कमरिया। कमरिया। जोहर, शमसिया। शमसिया। अल अस, तो अल-असर। कमरिया। अल-असर। हाँ, जिसमें जिसमें से अल की आवाज आ रही है। अब वो यहाँ उन्होंने क्या किया है आपके साथ, अल के ऊपर सुकून नहीं लगाया, इतना ही चक्कर है बस। अल इस्बा, इसके क्या माने होते हैं? कोई भी? फिंगर्स। फिंगर। यहाँ भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं ये तो साद है, लेकिन जो आपका लफ्ज है ना, माशाल्लाह आप सब क्लेवर हैं, ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना? ये क्लियर हो गया?
ये جی سر इसबा جی इसबा का ये दोबारा देखें, तर्जुमा बताइए, क्या है इसबा? ये देखें, انگلی इसबा होता है लफ्ज, जैसे अखुन होता है, अबुन होता है, उम्मुन होता है ना, ये इससे शुरू होता है। कई लोग कहते हैं सर इसमें तो साद आया है तो ये शमसिया नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ गलती ये हो जाती है जल्दी में। ऐसा नहीं कि वो थिक हैं, वो ये यहाँ गौर नहीं करते कि यहाँ ये अल शुरू हो इसबा रहा है हमजा हमजा विद कसरा। सो ये अल इस तरीके से लिखा जाता है। जब इस ये देखें, अखु यहाँ भी ये ऐसे ही लिखा गया है, अखुन, और उसके साथ अल जो लगाया है वो इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ देख लें, इसमें फर्क है। अल वजह में वजह वजह होना असल लफ्ज है, जब अलिफ से ही शुरू होगा तो फिर लाम को ऐसे लिखा जाता है, ये फर्क है। तो इसको फिंगर कहते हैं जी। आपका सवाल था, अभी ये पढ़ा है हमने पहली किताब में भी, जो असासिया जो किताब पढ़ी थी ना, उसमें ये पढ़े हैं हमने। इसकी जमा भी होती, मैंने बताई थी आपको, तो इसको दोबारा आप रिवाइज कर लेना। और जुफर किसको कहते हैं? जानवरों के आपने वो खुर बताए थे, नेल। जानवरों के नाखून, खुर, इंसानों के नेल भी जी नेल्स। नेल जी, जुफर। और बाकी तो ये सब आसान है। जी। ठीक है, आगे चलें फिर। جی سر ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, इसमें आप जितने भी अल्फाज हैं ना, इनमें ये देखें, ये तवीलुन, फकीरुन, ये सब आप इनकी एक लिस्ट बनाइए, अपने कार्ड बनाइए, जो वो स्मार्ट कार्ड होते हैं, उनमें आप लिखते जाइए जिन अल्फाज के आपको माना नहीं आते। ठीक है, तो ये है जी अदर्सुर्राबिया, चौथा लेसन हमारा आज का, लेसन नंबर 4। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर पार्टिसिपेंट आ जाए मुझे नजर, तो किससे शुरू करें? कोई वॉलंटियर है? मुझे नाम नहीं नजर आ रहा है। तो जी हमारे साथ मिसेस मोहसिन है, जो आयशा पहले रह गए थे ना, आनंद। वो पढ़ लें। मिसेस मैं मोहसिन पढ़ती हूँ। जी जी जी, जो पहले जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा ना अभी तक, वो पढ़े। मैं पढ़ती हूँ डॉक्टर साहब। जी, आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। यास्मीन। यास्मीन, अच्छा, आपने पढ़ा है पहले ना? नहीं पढ़ा, मैंने आज नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा, ठीक, पढ़े। अल हम्माम, अल गुरफतुन। नहीं नहीं, यहाँ ही रुक जाइए आप। अभी मैंने समझाया है कि जब अल लग जाएगा तो तुन खत्म हो जाएगा, अल ओके, गुरफतू बन जाएगा। अच्छा जी। अल गुरफतु, जी, अल अल हम, हम्मामू, अल हम्मामु, अल गुरफतू। अल गुरफतु, अल हम्मामु। जी, तो इसके आपने देख यहाँ ये बाई बाई जो है, ये क्या है? इसमें बा जो है, ये हर्फ ये शमसिया है या कमरिया? यास्मीन? जी सर जी जी, बाहर पे कमरिया है। जी, तो अभी हम यहाँ हमने पढ़ा है फिल बाइत, इसके बाद है फिल बाइती। जी, अल बैतु फिल बैती, जी, अल मस्जिदु फिल मस्जिदी, अल मक्तबु अलल मक्तबी, अल सरीरु अलल सरीरी। बस ठीक है, इतना ठीक है। अब आपने इसमें से एक दो चीज़ें नोट की होंगी, वो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में इंशाल्लाह। तो मैं ना इसको एंड पे जा रहा हूँ। इस लेसन के दो हिस्से हैं, अलिफ और बा। तो पहले हम इसके जो पॉइंट्स टू नोट है ना, वो देखेंगे, फिर हम जो वोकेबलरी है उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो नए अल्फाज आ रहे हैं वो ये हैं, तकरीबन आपको आते ही हैं। अल मदरसा, अल फसल, अल हम्माम, अल मिरहाद, अल मतबख, अल गुरफा, अल जामिया, अस्सूक, अल याबान, अस्सीन, अल हिंद, अल फिलिब्बीन, फिलिब्बीन, फिलिपीन को कहते हैं। अल मदीर, ज़हबा,
ये फेल है। खराजा, ये दोनों जो है ना, ये पहली दफा उन्होंने यहाँ आपके लिए वो लगाए हैं अफवाल, ठीक है। और ये तो हरफ आपको आते ही हैं, फी और अला मिन हरूफुल जर्री। ये देखें ऐसे लिखा जाता है, मिन हरूफिल जर्री, फराम द हरूफुल जर, ठीक है। इसके आगे जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर हैं वो हमको आते हैं, लेकिन फिर भी हम रीकैप कर लेते हैं। ये देखें, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरेबिक नाउन्स हैव एंडिंग्स टू शो देयर फंक्शंस इन द सेंटेंस। और इन दिस लेसन वी विल लर्न प्रेपोजिशंस। नंबर 1, वो उसको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जो भी यहाँ होगा ना, जैसे अल बैत और जदीदुन, दो अल्फाज हैं और उन दोनों की एक पोजीशन है। उनको समझाने के लिए वो कह रहे हैं कि द नॉर्मल एंडिंग ऑफ अ नून इज यू, यानी जदीदुन, उनकी आवाज आएगी। और द हाउस इज न्यू, अल बैतु जदीदुन, इसमें अल बैत जो है इसको डेफिनेट कर दिया है, मगर जदीदुन जो है कोई बताएगा ये भी डेफिनेट है या नहीं? indefinite. ये इंडेफिनिट, ठीक है। इस तरीके से एक जुमला बन गया, जुमलातुल मुफीदा इसको कहते हैं। द हाउस इज न्यू। A noun with the normal ending is said to be in nominative case. In Arabic it's called marfuun, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्जेक्टिव, यानी जो सब्जेक्ट होता है। तो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, यही समझ लें कि इसको हम, इस जो आवाज है ना वो बुलंद होती है और रफा में होती है। बाइतुन जब हम कहेंगे तो तुन की आवाज जरा आएगी ऊपर से, ठीक है। और जब हम तिन कहेंगे तो वो थोड़ी नीचे से आएगी। तो इस तरीके से इनकी एक स्टेज होती है, वो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। जैसे मैंने इसलिए आपके ना जो लेसन तो उसमें दिया बताया था कि तनवीन कैसे करती है काम, मिसला किताबन किताबन किताबिन। तो अभी जो सिलसिला शुरू होने वाला है ना वो ऐसा ही होगा, इसमें आप अभी देखेंगे इंशाल्लाह तबारक ताला। तो इसके ऊपर थोड़ी कंसंट्रेशन करनी है। तो इसको मैं अभी ये एक्सप्लेनेशन यही है। तो बाइतुन होता है, उसको अल लगा दिया तो अल बाइतु बन गया। अब इसके साथ एक हर्फ जर लग गया, इसने इस दम्मा के ऊपर एक असर किया है। फिल बाइती हो गया तो तू से ती हो गया। ये बात समझ आ रही है सबको? ये देखिए, बाइतुन, इसको अल बाइतु बना दिया और फिर फिल बाइती बन गया। अब बाइतुन के साथ फी लगाया है तो वो क्या हो रहा है, देखिए, बाइतुन फी बाइतिन हो गया। यानी उसकी वजह क्या है, तनवीन कायम रही लेकिन दम्मा से कसरा में तब्दील हो गई। हाँ, देखिए, इससे क्योंकि पहले भी बाइतुन जो है वो इंडेफिनेट है तो तनवीन भी फुल रही है। अल बाइतु में अल लग गया है तो तनवीन कम हो गई है। इसी तरीके जब हर्फ जर लगा है तो भी तनवीन कम ही रही है। ये फर्क समझना है बस। फी बाइतिन अगर अल अल नहीं लगा हुआ तो फुल तनवीन आएगी। अब नीचे देख लें, मकतबुन होता है असल लफ्ज, उससे अल मकतबू बन गया, द डेस्क बन गया, अल मकतबी अपॉन द डेस्क बन गया। इसमें अभी किसी को कुछ सवाल है? इसकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है बस, कि जब अला लग जाएगा तो जो आखिरी हरफ होगा ना उस पे तब्दीली आएगी। ये देखें सब आखिरी है, ठीक है ना, ये आखिरी है। इस बताइए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर, मुझे ये समझ में आया है कि अगर जो लफ्ज है जैसे बाइट है, इससे पहले वाले लफ्ज के नीचे जेर होगा तो उसका असर बैत पे भी पड़ेगा और वो बैती हो जाएगा। जैसे बैत है ना, यहाँ यही बात कर रहे हैं, बैतुन की बात कर रहे हैं। जी। मैं ये जो फिल बैती जैसे है ना, जी, तो
फिल बैती इस वजह से हुआ क्योंकि फा और या के नीचे जेर है, नहीं नहीं, लिहाजा फी है। फी लग गया ना, फी हाँ हर्फ जर है, और फेजर है। ये अच्छा, अमल है, ये एक अमल करता है। हाँ मतलब इसकी वजह से अगले लफ्ज के ऊपर ये पड़ा असर ऐसे कि समझे, इसके नीचे भी जेर आ गया। जी जी, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये जो है ना, फी ये हर्फ है और ये इसका विक्टिम है, इसने इसने विक्टिम बनाया अपना, तो उसको जी, उसने जर दे दिया। जर का मतलब होता है नीचे की तरफ जेर खींचना। जेर। हम्म, शलभा, ये अला वाले केस में तो जो है उसमें अच्छा, अला नीचे वाले में ये है कि ये भी मकतबी आया है, तो जी इसमें भी इसका मतलब है सिर्फ पेश के उसमें थोड़ा सा चेंज नहीं होता, लेकिन अगर जबर और जेर का मामला होगा तो फिर अगले लफ्ज जो आप कह रहे हैं विक्टिम, तो उसके नीचे फिर जेर आ जाएगा ना। वो इसकी वजह से आ रही है क्योंकि आला जो है ना, ये हर्फ हाँ जर है, इसका हाँ, काम ये है, इसका काम क्या अच्छा, है, जैसे कोई पुलिसमैन इशारे पे खड़ा होता है, उसका काम क्या होता है, ट्रैफिक को रोकना। हम्म, अल्लाह का काम है इसके जो विक्टिम है उसको जर दे देना, बस अच्छा, ये इसका काम है, इसने उसको खींच लेना है नीचे की तरफ, हम्म, बस। तो ये समझ में आई। मैं फिर या लगाऊं अपना आईपैड लगाऊं, यस, हाँ, या हम थोड़ी प्रैक्टिस करके देखते हैं, फिर अगर फिर भी ना समझ आई तो फिर आपको समझा देंगे। ठीक अच्छा, ठीक, इसमें दूसरा पॉइंट जो आपने नोट करना है वो मैंने आपको समझाया हुआ है। प्रोनाउंस जो होते हैं, ये देखें, प्रोनाउंस हुआ और हिया मोनस के लिए और हुआ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, हमें पता है। तो यहाँ वो अब थोड़ी सी आपको बता रहे हैं कि सब आपको आता है। तो आईना अल वलादू है ना सही लफ्ज। तो इसके में एक और बात आपने याद रखनी है कि जब अल वलादू के साथ जो लाम आती है ना, तो नून के ऊपर जो फतह है वो लाम के साथ जुड़ जाएगी, ऐ नल वलादू बन जाए। हम्म, समझ आई? इसी जी, तरीका से यहाँ आपने देखा अलल मकतबी, हम्म, मगर अब जब आप बोलेंगे तो अलल मकतब भी कह देंगे, अरबों को समझ आ जाएगी, आपको भी समझ आ जाएगी कि ये जो है ना ये हरफ जार है और ये इस्मुल मजरूर है, इसने इस इसम को मजरूर कर दिया, इसको नीचे की तरफ खींच लिया। बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है यार, कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की। अब हिया का इस्तेमाल करना है और हुआ का इस्तेमाल कैसे करना है। तो सवाल है ऐनल वलदू, वेयर इज द बॉय। तो उसका जवाब ये आ रहा है क्योंकि वलद जो है ये मुज़क्कर है, जब मुअन्नस को बोले मुज़क्कर, मुजक्कर मुज़क्कर, और मुज़क्कर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हुआ हुआ हुआ। हुआ, हुआ ठीक। फिल मस्जिदी, ही इज इन द अच्छा, मस्जिद, ही इज इन द मॉस्क। हम्म, अब किताब के बारे में पूछ रहे हैं, वलद जो है वो सांस लेता है, किताब सांस नहीं लेती, फिर उसके लिए भी ये है ऐनल किताब, वो आ रहा है, जी इसके लिए भी हुआ किताब कहाँ, वेयर इज द बुक। तो हुआ मुजक्कर। उसके लिए हुआ आया है, ठीक है, ये देखिए, हुआ, हम्म, उस वलद के लिए भी हुआ। ये आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है, मैंने सिखाया था आपको। अब ये नीचे एक थोड़ी छोटी सी उन्होंने बात लिखी है, और ये भी मैंने आपको बताई हुई है। द वर्ड फी हैज अ लॉन्ग वावल आई, but when it's followed by al, the I is shortened because in Arabic long vowels are not followed by a consonant which has no vowel. तो वो फिल हो जाती है। ये बात समझाई जा रही है आपको। और फिर हुआ फिल मस्जिदी, ठीक है ना, हुआ फी मस्जिद नहीं आप कहते। उसकी ब्यूटी बनाने के लिए लफ्जों में तो कोई माना में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। हुआ फी अल मस्जिदी, ये असल चीज है, हुआ फी फिल्म, अल मस्जिदी, ठीक है ना। तो हाँ, उसको अरबी की ब्यूटी बनाने के लिए हुआ फिल मस्जिदी बन गया। तो जो या है उसको क्वाइट कर दिया है, फा को लाम के साथ मिला दिया। हम्म, समझ आई? मैं देख हम्म, जी सर
ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये इसके साथ चला गया, फी के साथ। क्लियर हो रही बात? जी सर। सेंस बनती है ना, हम पढ़ते ही है ना फी, कितनी दफा कुरान मजीद में हर रोज पढ़ते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्लियर हो गई बात। जी सर। ओके, नेक्स्ट वन है हिया का इस्तेमाल। तो आमिना जो है मुज़क्कर है या मुअन्नस? मोनस। मोनस। तो आइना, अच्छा आमिना तू, इसमें आपने एक और बात नोट की है कि ता जो मोनस होते हैं उनके साथ तनवीन नहीं आती, नहीं मोनस लगती। नामों के साथ। ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें वापस आनी चाहिए आपके जहन में। ऐना आमिना तू, वेयर इज आमिना, आमिना कहाँ है? तो अब आमना चूंकि मोनस है तो यहाँ क्या आएगा, कोई बोले? या या फिल बैत। या फिल या, या। ठीक है ना, या। या और फी अल बैती नहीं पढ़ना, इसको फिल फिल बैती फिल पढ़ना। बैत। फिल भाई। ये भी क्लियर हो गया ना। जी तो अभी वो पूछ रहे हैं कि ऐनस सातु, नून को सीन के साथ मिलाया है, तो अस्सा जो है ये चमसिया है या कमरिया? शमसिया। शमसिया। तो फिर नून का जो अल है वो आवाज नहीं देगा, नून से मिल जाएगा, अनस साता। ये तो पढ़ने की चीजें हैं, बहुत आसान है इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा इस पे आज टाइम लगा रहा हूँ, फिर नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह। हिया अलस शरीरी, तो जब ये देखें यहाँ भी यही मसला बना है। तो इसको इसके साथ मिला दिया, लाम के साथ, या की आवाज नहीं आई, अलस शरीरी बन गया। ये बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। बहुत आसान है ये, अरबी अल्लाह ताला ने बहुत आसान बनाई है, बस थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। अब वो कह रहे हैं नोट कीजिए, वी हैव लर्न दैट द तनवीन इज द इंडेफिनिट आर्टिकल, सो बाइतुन, इसका मतलब है ए, हाउस। मगर अरबी में आपको कहीं भी ए नहीं नजर आएगा, आइन भी नजर नहीं आएगा, एम भी नजर नहीं आएगा, इज भी नहीं नजर आएगा। कपूला कहते हैं इनको इंग्लिश में। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्रॉपर नाउन्स। तो जो हामिद है ना, ये प्रॉपर नाउन है, मोहम्मदुन प्रॉपर नाउन है, इनके ऊपर तनवीन आ रही है। मगर आप ये नहीं कह सकते एक मोहम्मद, ए मोहम्मद, या ए हामद, ठीक है ना, या एक आबिद, ठीक है। समझ आई बात की? तो ये थोड़ी सी आपके लिए क्लैरिफिकेशन। इसी तरह वो कह रहे फेमिनिन प्रॉपर नाउन्स हैव नो तनवीन एट ऑल, फातिमा तू, जैनबू, आमीना तू, इसमें कोई ऐसी तनवीन नहीं आएगी। तो इसके और अल्फाज भी आएंगे, वो आपको भी समझाएंगे इंशाल्लाह। तो देख लें वोकेबलरी के लिए, अला मीन्स ऑन, आईना भी पता है आपको, मैंने आईना अंता आपने पढ़ा हुआ है, गुरफा भी पता है, समा, अल फसल, अलमिरहाद, ये नया लफ्ज आया है आपके लिए, ठीक है। अलमिरहाद टॉयलेट को कहते हैं जहाँ, और अल हम्माम बाथरूम जिसमें सब कुछ होता है, टॉयलेट जहाँ सिर्फ टॉयलेट होगी। अल मतबखु किचन, जो हर घर में होता है, ठीक है ना। अल मतबखु, मतबखुन, अल मतबखु। तो अल मतबख जो है ये शमसिया है या कमरिया? कमरिया। कमरिया। कमरिया है। माशाल्लाह, देखा, बहुत जल्दी आपने सीख लिया माशाल्लाह। किसी का सवाल यहाँ तक? ये दिखाना है मैंने आपको, तअम्मल मा याली, आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। इसको जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा ना वो पढ़ ले। रूही आपने पढ़ना है, आर यू अप टू इट? मेरे ख्याल में मेरे शाजिया साहिबा ने भी आज नहीं पढ़ा, शाजिया साहिबा ने भी नहीं पढ़ा। जायज है, आप पढ़ लें फिर। जी जी सर। ये तामुलु नहीं, यली, consider the following: Muhammadun, Aminatu, Khalidun, Zainabu, Hamidun, Fatima, Fatimatu, Yasirun, Maryamu,
अम्मारुन, आयशतु, सईदुन, खतीजतु, अलीयुन, सफियतु। सफियत है, अब्बासुन। अब्बासुन, रुक़ियतु। जी, तो इसमें आपने नोट क्या किया है, कौन सी चीज पे आपने कंसिडर किया है? ये जो मेल के नाम है उनके सब के ऊपर तनवीन है और फीमेल्स पे नहीं। यस, दैट्स इट। इस पे आपने घर पे गौर करना है, समझ लेना है इस बात को, ये भी बहुत आसान है, ठीक है ना। अब जी सर। इस जिसने नहीं पढ़ा ना वो थोड़ा थोड़ा पढ़ ले यहाँ से। ये सवाल जवाब हैं, एक दो सेंटेंस में कर देता हूँ, आप बाद में कर लीजिएगा। तो ये है ऐनल किताबो, तो इसका कोई जवाब बताएगा, इसके साथ हुआ आएगा या हिया आएगा? हुआ हुआ है। हुआ अल मकतब, हुआ अलल मकतब। अल मकतब। सर हिया होगा। हिया क्यों नहीं, होगा? हुआ होगा सर, हुआ। सर वो हुआ जो 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 अल्फाज जो होते हैं जो मुज़क्कर होते हैं। वो लाइवली नहीं है, जैसे किताब है, कलम है, तो उनके साथ हिया लगेगा। यही पढ़ाया है आपने अभी। नहीं, इसमें आपने जो पहले पढ़ाया था हुआ, ये देखे, अल किताब हुआ अलल मकतब। हाँ हुआ जी, हुआ अलल मकतब। अलल मकतब। ये कोई बात नहीं, यहाँ अकल और गैर अकल की बात नहीं हो रही। इस जहाँ ये बात हो रही है कि अरब लोग किस चीज को मुज़क्कर समझते हैं और किस चीज को वो मुअन्नस समझते हैं। हमारे यहाँ किताब को मुअन्नस समझा जाता है, लेकिन अरबों का यहाँ इसको मुज़क्कर समझा जाता है। That's all। यहाँ मुज़क्कर मुअन्नस का चक्कर है, आकल गैर आकल का नहीं। यहीं आपको कंफ्यूजन हुई थी। ठीक है, बात वाज़ेह होगी, समझ आ गई आपको? जी सर। तो अब बताना है कि ऐना मोहम्मदुन, इसके साथ क्या आएगा, हुआ या हिया? हुआ भाई, क्योंकि मोहम्मद मोहम्मद मुज़क्कर है, मुज़क्कर है। मुज़क्कर है, तो इसके लिए क्या आएगा, हुआ फिल फिल गुरफती, गुरफती, हुआ फिल या मस्जिदी, वो भाई हुआ फिल मक्तबी, हुआ फिल बैती। या फिल बैती, कोई भी लगा लें आप, जुमले खुद बना लेना। ऐन सआतु, हिया घड़ी अल कहाँ है, सरीर। घड़ी क्या है अब? या या हिया ये मुन्नस हिया है, अल तो ये हिया या आएगा। अल सरीरी। हिया अल सरीरी, अलल या जिदारु। जैसे भी आपने कान बनाने हैं बना लें, आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ हमने ना पैरेट नहीं बनाना, आपको समझाना है। जब अरबी जो है ना, ये सिखाई जाती है, पढ़ाई नहीं जाती। इंशाल्लाह तबारक ताला, आई थिंक यू विल एग्री विद मी इंशाल्लाह। तो अरबी तो हमने सीखनी है। पढ़ तो हर कोई लेगा ना, ऐना यासिरुन पढ़ लिया, ऐना आमीना, अब मतलब नहीं आता। इसका मुज़क्कर का नहीं पता, मुअन्नस का नहीं पता, तो दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग इंशाल्लाह। तो ये आप और भी इसमें देखना है कि यहाँ आईना का इस्तेमाल हुआ, फिर उसके बाद आ का इस्तेमाल हो रहा है, दो जगह पे, ठीक है। फिर मन का इस्तेमाल हो रहा है, और मन से पहले वा का इस्तेमाल हो रहा है। फिर माजा का इस्तेमाल हुआ, फिर माजा का इस्तेमाल हुआ। तो ये आपने नोट करनी है ऐसी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट वन, थोड़े से अब टाइम आपका खत्म हो रहा है। ये देखें, यहाँ भी इकरा वक्त आता है, उसको आपने लिखना भी है और उसको पढ़ना भी है, और लिखना भी है। तो अल मदरसतु होगा या अल मदरसतुन होगा? मदरसतु होगा। ठीक है, ये सही कहा है या गलत कहा है? मदरसतु होगा सर। जी हाँ, ठीक है। क्यों? अल लग गया है, अल लग अल गया, लगने की वजह से तनवीन हट जाएगी। तनवीन हल्की हो जाएगी ना। जी जी सर। तो तनवीन रहेगी तो यही, मगर वो हल्की हो जाती है। अब एक मैं आपको एक और बात जहाँ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर ज्यादा नहीं है।
आपने ये पढ़ा हुआ है, जब भी तनवीन जो है दम्मा की शक्ल में होगी तो वो मरफू होता है, ये अभी उन्होंने बताया है ना लेसन में। अल मदरसतु जो है ये क्या है, आप मुझे बताएंगे ये मरफू है या नहीं? मरफू है, मरफू है क्योंकि इस पे दम्मा लगा है, दम्मा। दम्मा लगा हुआ है। मदरसतुन मरफू होगा या गैर मरफू? मरफून। मरफू होगा क्योंकि उसके ऊपर भी दो दम्मे लगे हुए हैं, मगर अल नहीं लगा हुआ। वो इंडेफिनेट है, ये डेफिनेट है। अब आगे आगे आपका टेस्ट थोड़ा सा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे कोई फिल भी? मदरसती, फिल मदरसती, मदरसती, हाँ, तो ती के नीचे कसरा आएगी, ठीक है ना? कसरा, और इसकी मजरूर वजह है, क्या है? मजरूर, पहला लफ्ज भी इसका वो मजरूर है, पहले जर है, ये जर। इसकी जर हरफे करनी जर है, है। हर्फ जर, और ये इसकी विक्टिम है, इस्मुल मजरूर इसको कहेंगे। ये अगर कहना भी है तो कह ले, नहीं कहना तो भी कहेंगे। मगर ये इस क्या ये भी हालत मरफू में है? नहीं, ये मरफू नहीं है। मरफू नहीं ये है, हालत मजरूर। जर में है, जी। जर में। ठीक है ना? तो ये आपने थोड़ा थोड़ा गौर करना है। और ये यहाँ तो मुझे बड़ा चक्कर नजर आ रहा है। फी अल मदरसा क्यों नहीं पढ़ा हमने? फिल क्यों पढ़ा था आपने? ब्यूटी के लिए वो जो जुमला है आपने बताया था कि हाँ, फिल वो लगे, ये फिल हो ये जो जाएगा, या को इग्नोर करते हुए फा को इससे मिला देंगे, मिटा देंगे। मगर आवाज जो है वो कसरा की आएगी। फिल हाँ, मदरसा, फिल, इसको आगे पढ़े। फिल बाईती, जी, तो इसको कैसे पढ़ेंगे ये वाला? अलबैतु, अल बाईतू, अल भाई, और इसको आपने ये काम अलबैत करना कातु। है, इसको लिखना है। फिर उसके जो आखिर के उसके दवाबत है ना, दबत जिनको कहते हैं, उसकी जमा दवाबत होती है, वो आपने लिखने हैं। ऐसे आप कॉलम बना लीजिएगा, मरफू, मजरूर, ठीक है, हर्फ जर की पहचान हो जाएगी, इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। ये भी हो गया। ये इकरा वक्तुब, इसको आपने लिखना भी है और पढ़ना भी है। अब फिर जामियाती देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए है सारा, ठीक है। और रजुलु फिल मस्जिद, ये आप कर लेंगे ना? आपको जी 2 साल हो गए नियरली पढ़ते हुए, अब करना चाहिए इंशाल्लाह। कर लिया जी, सर, जी इंशाल्लाह हो कर जाएगा लिया। इंशाल्लाह। हो कर जाएगा लिया, थोड़ा सा इंशाल्लाह, कर ठीक लिया है ना? है। ये भी हो गया। ये देख लें आप, ये भी आपने लिखना भी है और इसको पढ़ना भी है। लिखना बहुत जरूरी है, जब आप लिखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। आप इसको फिर चेक भी कर सकते हैं, जो नहीं समझ आती वो आप पूछ सकते हैं। तो देख लें, जैनबू, आमिना, तो अम्मार, सईदुन, फातिमा, बहुत आसान है इंशाल्लाह, ठीक है। जी। अच्छा, ये है हिस्सा बा। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने हुआ और किया पढ़ा था, यहाँ अना भी आ गया, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। अल मुदर्रिसु मिनाई, पूछ रहे हैं, मुदर्रिस साहब पूछ रहे हैं मिनाइना अंता, आप कहाँ से हैं? मोहम्मद जवाब दे रहे हैं अना मिनल जबान। तो यहाँ देख रहे हैं कि हर्फ जार को मिनल जबान से मिलाया है। तो बहुत आसान है, इसकी भी आपने कोशिश करनी है। जो समझ में नहीं आएगा उसको आपने नोट कर लेना है, मगर मुझे अल्लाह तबारक ताला से उम्मीद है आपको हर चीज समझ आएगी इंशाल्लाह। बहुत आसान हो। यहाँ थोड़ा सा ना ये देख लें, जहाबा और ये दो फेल आए हैं। तो वो कह रहे हैं, अल मुदर्रिस से पूछ रहे हैं ऐना अब्बासन, अब्बास कहाँ है? मोहम्मद कह रहे हैं खराजा, ही लेफ्ट। इसका माना होगा चला ही गया। लेफ्ट। तो अल मुदर्रिस जो है वो ये पूछ रहे हैं ऐना ज़हाबा, वेयर डिड ही गो? ओ, मोहम्मद कह जहाँ रहे गया, हैं, मोहम्मद ज़हाबा इलल मदीरी, ही वेंट टू द मदीर, मैनेजर। कहते हैं हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को, या जो अपने मैनेजर होते हैं उनको भी मदीरी कहते हैं। अल मुदर्रिस फिर कह रहे हैं ऐना ज़हाबा अलीयुन, और अली कहाँ गए हैं? मोहम्मद जवाब दे रहे हैं ज़हाबा इलल मिरहाद, ही वेंट टू द टॉयलेट। ये आपको नजर आ रही है ना टॉयलेट? जी। ये ये मिरहाद है, ठीक है। या समझ आ गई? बहुत आसान है इंशाल्लाह।
تو یہ آگے جو ایکسرسائز ہے یہ بھی بہت جواب دینا من این انت ویئر آر یو فرام انا من پاکستان انا من بریطانیہ واٹ ایور. یہ فلپین اس کو پڑھنا ہے, اس کی تھوڑی پریکٹس کر لیں. یہ الصین چائنا کو کہتے ہیں. ہاں سر. اچھا یابان جو ہے وہ جاپان کو کہتے ہیں سر. یابان جو جاپان کو, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں تین نیچے آ چھ رہے ہیں نہیں ہوتا سبھی. اس لیے سین یہ ہوتا ہے. دیکھیں یابان ہے, یہ فلپین تھوڑا سا ہے, مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم اتنا بولتے نہیں ہیں نا. من الہند الصین, اس میں آپ نے دیکھا سب کے ساتھ ال لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ہند کے ساتھ بھی دیکھیں اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کیسے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے, یہ تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی. اوکے, پھر وہ یہ بھی ہے اقرا وقتب من این فاطمہ تو ہی من الہند. یہ جوابات دیے ہوئے ہیں, اس کو بھی تھوڑا یہ افعال کے اوپر ہم نیکسٹ ٹائم تھوڑا کام کریں گے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا, ٹھیک ہے. تو یہاں پھر ہم روکتے ہیں انشاءاللہ, ٹائم 7 منٹ سے اوپر ہی ہو گئے ہمارے. تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اجمعین انشاءاللہ یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صدق اللہ العظیم. چلیے یہاں فی امان اللہ. فی امان اللہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ. میں نے ایک بات کرنی تھی, وہ نیکسٹ ویک کر لیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کے پاس, آپ نے وہ ریکارڈنگ روک دی ہے جی, اگر آپ کچھ لوگ چلے گئے ہیں تو نیکسٹ ویک بات